من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اس جینے میں کیا جینا، کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اس جینے میں کیا جینا، کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزن علاقہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں، محکمہ برقیات کے ملازمین، افسران، صاحب، ایس ٹی او صاحبان اور محکمہ برقیات کے لائن سٹاف، دفتری سٹاف اور کھوئی رٹا شہر کے باسیوں، میرا یہاں پہ آج ہم سارے افسران کا، محکمہ برقیات کے لوگوں کا یہاں پہ کچہری کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے، غرض و غایت یہ ہے کہ حکومتی ہدایت کے مطابق عوام علاقہ کے پاس جا کے میل جول رابطہ کر کے ان سے مل کے تو ان کی شکایات جاننا، ان کے مسئلے مسائل جاننا، اور جو حل طلب ہیں جن کی موقع پہ کوئی فوری حل ہو سکتا ہے ان کو موقع پہ حل کرنا، اور جو حکومتی اختیار میں ہے وہ تجاویز جو ہے عوام علاقہ سے لے کے تو وہ حکومت تک یہ مسائل عوام کے جواب پہنچانا، یہ غرض ہے اس کی. اس کے لیے ہم نے 3-4 دن پہلے اخبارات میں پورا شیڈیول جاری کیا کہ کس دن کھوئی رٹا، کس دن کوٹلی، سہسا اور چکسواری، ٹڈیال، پورے ریجن میں میں نے پروگرام جاری کیا. اس حوالے سے ہمارے یہاں پہ جو دفتر ہیں یہ بھی متحرک رہے، انہوں نے لوگوں کو بتایا بھی. تو جو لوگ آئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو نہیں آئے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ ہمارے محکمے سے مطمئن ہیں. بہرحال جو آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کہیں گے. اور یہاں پہ اس کا شیڈیول یہی ہوگا کہ باری باری جس بھی صارف کا کوئی شکایت ہے وہ تحریری شکل میں ہے، زبانی ہے، وہ نوٹ کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ وہ اگر مسئلہ سرکل لیول پہ، ڈویژن لیول پہ یا میرے دفتر کی حد تک ہے تو اس کو حل کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بلا تاخیر اس میں ہم پیش رفت کریں. اور جو حکومتی حوالے سے جس کی ہمیں ضرورت ہوگی منظوری کی تو اس میں وہ حکومت کی طرف بھیجیں گے. اس سے پہلے ہمیں تھوڑا بہت جو اقدامات یہاں پہ اس پچھلے عرصے میں ہوئے ہیں، فیڈرز یہاں پہ بنے ہیں، ٹرانسفارمرز لگے ہیں. ایک ٹرانسفارمر ریکلیمنیشن کے لیے، یعنی دوبارہ ٹرانسفارمر ورکشاپ کے لیے آپ لوگوں کو کوٹلی جانا پڑتا تھا،
اور وہاں پہ الگ ایک رش ہوتا تھا کہ کوٹلی کے پراپر کے اتنے ٹرانسفارمر پڑے ہیں، پھر باریک ہوئی رٹے کی کب آئے گی. تو اس کے لیے ورک شاپ جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، جس کا سامان بھی آ چکا ہے، بلڈنگ بھی زیر تعمیر ہے، اور امید ہے ہماری کوشش ہے کہ جون تک یہ مکمل ہو جائے، اور لوگوں کو قریب ترین اگر ٹرانسفارمر کوئی خراب ہو جاتا ہے تو اس کو جلد از جلد جو ہے نا مرمت کے لیے جو ہے وہ کارروائی کی جا سکے اور لوگوں کو بجلی کی سہولت فراہم ہو. اسی طرح میٹر ریڈنگ کے حوالے سے اکثر یہ ہے کہ ہمارے میٹر ریڈروں کے پاس کنیکشن چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، گھر گھر جانا بھی پڑتا ہے، اور کچھ ہمارے جو ہے نا ملازمین کوتاہی بھی کر جاتے ہیں کہ ایوریج ریڈنگ دور سے جا کے بغیر دیکھے بل دیتے تھے. تو ہم بہت جلد اگلے 1 مہینے کے اندر ایک ایسا پروگرام گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے، محکمہ برقیات ہے، اس کے لیے ٹریننگز بھی اپنے اسٹاف کو دی ہیں، اور ڈیوائسز یہ موبائل کی طرح کی ایک ڈیوائس ہوگی جس میں میٹر کا فوٹو آئے گا. میٹر ریڈر جائے گا، فوٹو لے گا، جس میں جو ریڈنگ ہوگی نہ زیادہ نہ کم، اور جس تاریخ کو وہ ریڈنگ کرے گا وہ بھی آئے گی. اس لیے اس کو جانا پڑے گا ہر صورت میں. وہ پھر کمپیوٹر سینٹر کو بھیجے گا، ادھر سے میسیج کرے گا، جس طرح ہم واٹس ایپ کرتے ہیں پوری دنیا میں جاتا ہے. تو اس سے بل ہمارا وہاں سے نکلے گا پرنٹ، تو وہ بل ہمیں جو ہے نا سرو ہوگا گھر گھر. تو اس سے ہماری ریڈنگ کی شکایت کا ازالہ ہو جائے گا. ٹرانسفارمرز کی مرمتی کے حوالے سے جو شکایات ہماری رہی ہیں پچھلے عرصے میں، کوشش کریں گے کہ ورک شاپ بننے سے بھی اور باقی جو چیزیں سامان ہیں اس کو بھی ہم زیادہ مقدار میں فراہم کریں. آنے والے دنوں میں نئی جو پروکیورمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے تو اس سے ہم آپ لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کر کے شکایات کی بھی کمی کریں گے. تو میں یہی کہوں گا کہ باری باری اپنی جو شکایت ہے وہ بتائیں تاکہ ہم اس کو نوٹ کریں، اور اس پہ جو اپنے ادارے افسران کی حد تک ہیں وہ ہم اس کو حل کریں، اور جو حکومتی لیول پہ ہے تو اس کو وہاں پہ ان کی نوٹس میں لائیں. ٹھیک ہے، آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ اچھا تو وہاں میں خبر میں نے سے بتا دی ہے. ابھی 400 میٹر میں چاہیے چار بار سے میں تھا رہا ہوں. کا کام اس کے وجہ سے رکا ہوا ہے. جو لگا ہوا ہے اس کو اس کے لیے چاہیے کسی کارروائی کی ہوئی. جی جی سر یہ ہمارے پاس آئے تھے، یہ لکھ کے ہم لانچ ریٹرن کی رپورٹ بہت ہم سب کو دے دیا. 400 میٹر آپ کی کنڈکٹر کوشش کریں کم از کم. ٹھیک ہے سر، ہو جائے گا. کافی دور چلا جائے گا، ان کی ضرورت اتنی دور کرنے کی نہیں پہلے بڑا اس کا کرنا. مسجد بنا رہے ہیں، اچھا دیکھیے گا سامنے ان شاء اللہ آپ کی ہیلپ کریں. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ مل جائے گا. یہ آپ کو مسجد کی جگہ خالی کر کے دیں. ٹھیک ہے، چلے تار جتنی بھی لگتی ہے ٹھیک ہے، بس مسجد بنانے کی جگہ جو ہے خالی کر دیں. ٹھیک ہے، بجلی کی لائن بنانی ایک پول سے ہوتی ہے. ہماری گل میں سارا فارم تو سیدھا ہوا اس میں لیکنگ ہے، ٹینک لیک ہے. اس نے 4 بار یہ مرمت کرائی دی خود. ایک بار کوائل لی ہے محکمے دیتی ہے، کوالٹی نے پیسے اس خود دیتے ہیں، اس میں پیپر شیپر نہیں. ایک بار محکمے پہ جو ہے ریپلیس ہوا اسی کی. تیل اس میں اس وقت تک لیک ہے، تیل بھی بہت کم ہے، بار بار وہ جلی جانا. وہ کروایا تھا کس پلاسٹک ہے؟ سر اس میں وہ ہم نے دوبارہ کی ویلڈنگ گیس ویلڈنگ کروائی ہے نا اس کو خالی کر کے. اچھا، لیکن دوبارہ اس سے ہے پرانی کمپنی کا اس کا سر وہ ہمیشہ 50 کا لکھ لینا چلے سے ریپلیس کر دیں. ابھی بالکل اس میں تیل کم ہے تو وہ سب جل جائے گا. تھوڑا ٹائم لگے گا، کرے گا. ٹھیک ہے عمران ٹھیک ہے. اپنا کانٹیکٹ نمبر فون نمبر لکھ دیجیے. 0341 1529 641 جی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے السلام سر. سر مہربانی سر، خرید سے ٹھیک ہے سر. 1 by 1 جی الحمد للہ سر. ٹھیک ہے.
जी 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 सर नहीं पता है ना, मेरा बयान है। जी सर तो सर्विस परचेज कर रहा हूँ कल साड़ी वीडियो कर اس کے بعد پھر آڈر وغیرہ دیکھ کے تو سر ملوا سا امید ہے دسمبر جنوری تو سر بڑھا دیں ان شاء اللہ میں نے رابطے بھی رہنے تو میں سب سنا حکومت قدر کر تو میں کوئی پتہ ہی ہونی ملاقاتی بھی کری اصل بس میں یاد کر رہا ہوں اس نا یہ لڑکا نظام دین ساڑے کول یہ لگا وسی ڈسیبل پرسن MNT وچ جونیئر کلرک اس نے پھر وہ کوالیفکیشن اس وقت نہیں سی اس میں جب آرڈر ہویا اس بعد وہ BA کوالیفکیشن ہونے نہیں وجہ تھوں تو یہ پھر اس نے نہیں آ سکیا ہوں اس نویں سرے تھوں اپلیکیشن دیتی ہے اور منسٹر صاحب صحت جڑا نا انہاں کوئی خالی اسامی نہ آکھیا سی میں اس کی روشنی پھر ایکسین کو رٹا کے لکھا سی کہ اگر خالی اسامی کوئی نشاندہی ہونی ہے ٹھیک ہے اس نا بہت پرانا میں پتہ ہے 10-12 سال میں جی اچھا اس میں منسٹر صاحب بھی فیور کریں جی میٹر ریڈر بل ڈسٹریبیوٹر کوئی اس طرح کی آسامی آنی وہ اس نا سارا لکھا ٹھیک ہے نا تو اس میں ترجیح دے سکتے ٹھیک ہے نا اس کو ترجیح دینی ہے اس نے اس کی چلو یہ بیچارہ آخنا میں کہ پاوے نائب قاصد لائی اڑو چلو پوسٹ کوئی میں کہا نائب قاصد نہیں تو کوئی پوسٹ آنی سے پرائٹی بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جو بہتر ہوا جی چلو پوسٹ آوے نا جی انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹھ کے ہی بچے مشکل ہے بیٹھ کے بات ویڈیو درست ہوں ٹھیک ہے جیسے پریس کلب کوئٹہ کا میں صدر ہوں تو مختلف عوامی شکایات آئے روز ہمارے پاس آتی رہتی ہیں جو اخبارات کی زینت بن کر آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اکثر اوقات اس سے پہلے ماضی کی خبروں میں دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو بجلی کی تاریں ہیں وہ شہر کی بہت ساری جگہوں پر دکانوں کے قریب ترین لٹک رہی ہیں اور شہر کے علاوہ مضافات میں بھی ایسے ہے کہ تاریں بالکل انسانی قد کے بالکل آس پاس ہیں. جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے تقریباً 500 گز کے فاصلے پر بھی تقریباً ایسا ہی ہے کہ بجلی کی تاریں زمین کے بالکل قریب ہیں اور 11,000 وولٹیج کی جب تاریں گزرتی ہیں تو پھر مکینوں کو خطرہ ہوتا ہے اور کئی ایسے حادثات ہو چکے ہیں کہ لوگوں کی جان چلی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ مثلا میں اپنی مثال دوں کہ 1987 میں میرا کنیکشن لگا تھا اور تب سے اب تک پہلے 10 روپے تھا اب 18 روپے کے حساب سے میٹر رینٹ ہم دے رہے ہیں. یہی سارے لوگوں کا حساب ہے. اگر ایک میٹر جب کسی کا خراب ہوتا ہے ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ محکمے کو پیسے دے کر منیمم 2,000 سے 2,500 روپیہ وہ دے کے میٹر نیا پرچیز کرتا ہے. اگر پرچیز کرتا ہے تو پھر اس کو کس مد میں 10 روپے کے حساب سے اور اب 18 روپے کے حساب سے اس سے میٹر رینٹ لیا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ٹیکسیز ہیں وہ کافی سارے ہیں. مثلا ایک بندے کا بل 900 روپیہ بنتا ہے لیکن اس کو ٹیکس اس کو ڈال کے تقریباً 1,500-1,600 روپیہ تک آ رہا ہے. ایک تو میٹر یونٹ جو غریب صارف ہے وہ میٹر وہ بمشکل جو ہے نا وہ پرچیز کرتا ہے, پھر اس کو بل زیادہ آتا ہے اور پھر ایک مہینے میں مثلا کسی کا ڈیمیج میٹر ہے تو محکمہ اپنی مرضی سے اس کو یونٹس ڈالتا ہے. مثلا میری کبھی پہلے 100 آتی تھی, پھر 150 آتی تھی, پھر 220 اور ابھی آخری بل جو ہے وہ 240 یونٹس کا آیا. تو یہ اس کا ایک میکانزم ہونا چاہیے کہ کس طریقہ کار کے ساتھ جو بلات ہیں وہ دینے. تیسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات جب ٹرانسفارمر جل جاتا ہے کسی محلے کا تو 10 دن 15 دن 20 دن لگ جاتے ہیں. وہ لوگ اپنے متضاد کے تحت کئی جگہوں پر ایسی شکایت ہیں کہ پیسے بھی جمع کرتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ وہ ٹرانسفارمر وہ دوبارہ تنصیب ان کی ہوتی ہے اور جو دن ان کے صرف ہونا چاہیے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ محکمہ اپنی سروسز کے
पैसे ले रहा है और गवर्नमेंट में इस मद में पैसे मुख्तस कर रही है। जब किसी इलाके का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो होना ये चाहिए कि जब आपके पास शिकायत आती है आप अपनी गाड़ी लेकर जाएं, ट्रांसफार्मर पुराना उठाएं और नया ट्रांसफार्मर लगा के आएँ ताकि लोगों को सहूलियात मिले। अगली बात यह है कि आपके शिकायत सेल में ऐसे होता है कि जब भी हम शिकायत लेकर आते हैं कि हमारी बिजली ख़राब है और फिर जब बिजली ख़राब होती है तो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि महकमे का बंदा गया हुआ है किसी जगह पर कनेक्शन ठीक करने के लिए बिजली की, वो शिकायत पर गया हुआ है, तो बाज़ का 1 घंटा 2 घंटे, बाज़ का रात भी लग जाती है, सुबह हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एहलकार कम है। लेकिन ये क्वेश्चन उस जगह जाके बड़ी अजीब सूरत हाल अख्तियार कर जाता है कि जब आप 2 महीने के बाद 3 महीनों के बाद शाख तराशी होती है और शाख तराशी के अलावा के लिहाज से 6 यूनियन कौंसल खुरेटा हैं, उन सब की बिजली बंद की जाती है और फिर उस वक्त एहलकार कहाँ से आ जाते हैं और वो 1 दिन लगता है या 2 दिन लगता है और 2 दिन में वो शाख तराशी होती है। अगर 2 दिन में शाख तराशी हो गई तो एहलकार इतने मौजूद हैं तो फिर जब शिकायत होती है तो उसके लिए बाज़ औक़ात 1 रात इंतज़ार करना पड़ता है, बाज़ औक़ात 1 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि आपका जो लैंडलाइन नंबर है वो अक्सर ख़राब रहता है, उसको बेहतर किया जाए और उसके शिकायत सेल के लिए 2 से 3 नंबर मुख्तस किए जाएँ ताकि लोगों की शिकायत पर फौरी इज़ाला किया जा सके। तीसरा, मैंने बताते खुद देखा है आपके शिकायत ऑफिस में जाकर शायद 1978, 90, 85 का कोई एक मोटरसाइकिल पुरानी हालत में पड़ा हुआ है, जब भी आपके ज़िम्मेदारान से पूछें तो वो कहते हैं यही तो हमारे पास बाइक है। लोगों को अपनी शिकायत के इज़ाले के लिए अक्सर औक़ात अपना बाइक या गाड़ी भेजनी पड़ती है। आप इन लोगों को अच्छा बाइक फराहम करें, गाड़ी फराहम करें ताकि ये फौरी तौर पर लोगों की शिकायत का इज़ाला हो सके। इसके बाद अक्सर औक़ात लाइन के ऊपर होता है कि किसी जगह पर डबल लाइन करंट की शिकायत आती है या कुछ भी है, या आप इंजीनियर आप बेहतर जानते हैं, जब आपका कोई एहलकार खंभे से गिरकर शहीद हो जाता है तो फिर उसको जब उसके घर तक पहुंचाया जाता है तो अक्सर औक़ात प्रॉब्लम क्या होती है, जो ये मैं इनकी फेवर कर रहा हूँ इसलिए कि ये भी मुलाजम है, गरीब आदमी हैं और उनके पास क्या होता है, उनके पास हिफाजती सामान नहीं है। आप अपने ऑफिस में जाकर देखें कि आपके मुलाजमीन के पास हिफाजती सामान नहीं है और आप उनको 11,000 वोल्टेज के ऊपर भेज रहे हैं, तो ये ज़्यादती है। और उसके बच्चे हैं, उसका जो कत्ल हो रहा है ये किसके ज़िम्मेदार है? ज़ाहिर है आप इंजीनियर हैं, आपकी ज़िम्मेदारी होगी या मिनिस्टर बरक़यात की ज़िम्मेदारी होगी। पिछले 5 सालों के दौरान यहाँ से मिनिस्टर बरक़यात थे। सबसे अच्छी बात चलें एक हमें फ़ायदा मिल रहा है कि जो आपका ये ट्रांसफार्मर मरम्मती वर्कशॉप बन रही है, लेकिन कितने अरसे से चलें देर आए दुरुस्त आए कि ये अच्छी चीज़ है कि अच्छी पेशरफ्त हुई है, लेकिन इसको बहुत जल्द हो जाना चाहिए था। मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि ट्रांसफार्मर मरम्मती वर्कशॉप पर जो ही किसी का ट्रांसफार्मर ख़राब होगा तो फौरी तौर पर वो उसकी रिपेयरिंग की जाएगी या फिर हुकूमती ज़िम्मेदारी पर, क्योंकि आप हमसे पैसे लेते हैं और उसके बदले में आपको सर्विस फराहम करना ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और आपका फ़र्ज़ बनता है और लोगों का हक बनता है। इसके अलावा अक्सर औक़ात देखा गया है कि लोगों के जब मसाइल होते हैं वो शिकायत बिल दुरुस्ती की सूरत में तो दफ्तर में जाते हैं तो फिर वो शिकायत के लिए उन्हें काफ़ी खासा टाइम वेस्ट होता है बंदों का, ठीक है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपका कंप्यूटराइज निज़ाम हो तो सबको एक ही तरह का बिल मिले, एक ही तरीक़ेकार हो। फिर एक और दिलचस्प बात यह है कि 100 यूनिट वाले का बिल अलग है, 150 वाले का ज़्यादा है, 200 रुपये यूनिट वाले का बिल अलग है। ये सारा ये एक सिस्टम मसावत नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अगर आपकी कोई ज़्यादा बिजली सर्व कर रहा है तो उसको फेवर दें, या अगर ऐसा नहीं है तो गरीब सारफ है उसके लिए कम से कम होता है। फिर एक और बात है कि मसाजिद का जो बिल है उसमें भी तमाम टैक्सेस डाल दिए गए हैं, तो मसाजिद में आप भी उसी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, मैं भी उसी हम सब से तल्लुक़ रखते हैं, तो कम से कम वहाँ के ऊपर किसी हद तक रिलीफ मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन्हीं शिकायत के ऊपर भी अजाला कर दिया जाए तो बहुत मज़ा शौकिया है। बहुत शुक्रिया। बड़ा साहब बड़ी अच्छी बात लग रही है आपने।
बैठते हैं बस ठीक है। चीफ साहब देर आए दुरुस्त आए, काश अगर आप 5 साल के अरसे में जब वज़ीर बरक़ियात राजा अंसार अहमद ख़ान साहब मिनिस्टर थे बरक़ियात के, तो इसी तरह हर 6 माह के बाद अगर खुली कचहरी लगती या साल के बाद लगती तो बेशुमार लोगों के जो मुतालबात थे कुछ हल हो जाते। फिर भी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सब अच्छा नहीं है। जहाँ सार्फिन के मसाइल हैं वहाँ मुलाजमीन के भी मसाइल हैं। मैं पहले आपकी तवज्जो मुलाजमीन के मसाइल की तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि आपका एक जो लाइन मैन है रात को बिजली की तार ठीक करने के लिए जाता है किसी के घर, बदकिस्मती से उसके पास पहनने के लिए ग्लव्स नहीं होते। आपके महकमे ने, आप एक बड़ी पोस्ट पे हैं, आज तक आपने क्या ये अपने मुलाजमीन को पूछा है कि उन्हें ग्लव्स दिए जाएं, शूज़ दिए जाएं? लेकिन खुईरटा में हमने कभी आज तक ऐसा देखा नहीं है कि किसी मुलाजिम के पास ग्लव्स हों या शूज़ हों, वो जाकर तार किसी की ठीक करे। एक बात तो ये, दूसरी बात, जब बिजली ख़राब होती है, फॉल्ट आता है, तो ग्रिड स्टेशन वापडा, जिसको सफ़ेद हाथी कहते हैं माजरत के साथ, जब तक बिजली महकमा बरक़ियात का कोई मुलाजम वापडा के मुलाजम को ग्रिड स्टेशन पर जाकर नहीं कहेगा कि आप ट्राई करें, उस वक्त तक जो है वो ट्राई नहीं देगा। बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ से लाइन सुपरिटेंडेंट साहब, SDO साहब रात को 2-2, 3-3 बजे भी गए वहाँ से ट्राई दिलवाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम, ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि SDO साहब फ़र्ज़ करें मुजवाल रहते हैं तो सर्दी में मुजवाल से डूंगी जाने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है, ताकि कोई ट्राई देनी हो तो महकमा जो बरक़ियात वाले, वापडा वाले, इनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है सर कि खुईरटा शहर में 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि बेशुमार लोगों के घर जुड़े हुए हैं महल्ले में, कि यहाँ जो केबल है, फाइबर जो आ रही है, मंजूर हो गई है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट भी चली गई है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खातिर खा हमें फ्रूटफुल आज तक जवाब नहीं मिला कि अंडरग्राउंड जो केबल, जो बिजली की लाइन बिछाने, उसका क्या रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला। इसके अलावा बेशुमार आप सर्वे कराएं, जो आज तक आपके महकमे ने सर्वे नहीं करवाया। खुईरटा सिटी के अंदर बेशुमार लोगों के घर के ऊपर से बड़ी मेन लाइन तारें गुजर रही हैं, बेशुमार लोग हादसात का शिकार हुए हैं, बेशुमार लोगों की जानें ज़ाया गई हैं, लेकिन आज तक आपके महकमे के कान तक जूं नहीं रेंगी। कितने लोग खुईरटा सिटी के अंदर इस वजह से महकमा बरक़ियात की नाअहली की वजह से लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं खुईरटा शहर के अंदर। आज तक क्या आपने उस चीज़ को मलहूज़े खातर लाया है जिस वजह से एक इंसान की जान ज़ाया हुई है कि आपने आज तक वहाँ से तार को आगे पीछे किया है? नहीं किया, आज तक तारें वही हैं। इसके अलावा जो औसत बिल दिए जाते हैं, इसकी भी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। एक मीटर रीडर की ज़िम्मेदारी है कि वो घर जाकर मीटर को देखकर यूनिटें डाले। औसत जो बिल होते हैं, इससे भी लोगों को छुटकारा दिलाया जाए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप देर आए दुरुस्त आए। अगर मेरी बातें आपको कड़वी लगी हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं चीफ साहब, क्योंकि ये सच कड़वा होता है। तो मज़ीद जो हमारी लोगों की जानें हैं वो ज़ाया ना, वो थोड़ा सा मुश्किल जगह पे है। अगर कोई 70-80 साल का बूढ़ा शिकायत बिजली की कराने के लिए आता है, उसकी बिजली ख़राब है, तो सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसके बारे में भी आपको सोच विचार करें। बहुत मेहरबानी। सो थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज खुली कचहरी के इनकाद पर चीफ इंजीनियर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले भी खुली कचहरी लगती रही आपके महकमे के हवाले से, लेकिन सिर्फ नाम की हद तक हो रही। ठीक है, हमारा इलाका है, यहाँ से ये खुईरटा मेन सिटी है, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के वक्फे पे है।
जो हमारी जो लाइन जा रही है वो तकरीबन 1520 किलोमीटर के वक्फे से राउंड अबाउट करते हुए वो जाती है हमारे इलाके में। मेरा आपसे यही मुतालबा है, ठीक है, मेरा यही मुतालबा है कि जो हमारी जो लाइन है वो मेन सिटी के साथ कंडक्ट करें, क्योंकि वो जो मसला ये है कि हमारी ये 15 से 20 किलोमीटर की जो लंबी लेंथ है वहाँ से जब वो जाती है तो बेशुमार फॉल्ट आ जाते हैं। किसी एक महल्ले के फॉल्ट की वजह से हमारी वो बिजली वहाँ पे बंद हो जाती है। यहाँ से जो बेहतरीन जो तरीक़ाकार है ये हमारा मौज़ा में जो हाल है, डेरी साहबजादा इलाका है हमारा, और तकरीबन 2-3 पोल के वक्फे पे वहाँ तक वो हमारी ये खुरेटा की लाइन वो जा रही है। तो हमारा ये मुतालबा है कि उसको जनाब उसको यहाँ पे आप नोट कर लें, वो उसको उसके साथ कंडक्ट किया जाए। तो दूसरी बात यह है कि जो हमारे ओवरऑल जो इश्यूज़ है महकमा बरक़ियात के हवाले से, मतलब बिल्स के हवाले से पिछले महीने में आपके यहाँ पे इंक्वायरियाँ भी चली और बेशुमार FIR भी हुई, उसको भी थोड़ा सा आप नोट कर लें कि वो एक दुरुस्त हिम्मत की तरफ जाना चाहिए, ना कि घुमा फिरा के वहीं मौक़िफ़ वही हो, लेकिन घुमा फिरा के जब बयान करते तो लोगों को थोड़ा सा मुश्किलात होती है। और मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम स्टाफ ने मजीद तो कोई और कोई साथी अगर कोई किसी नहीं जी कोई चलो दस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अस्सी साहब, सब तो पहले तो मैं सदर प्रेस क्लब और मैं इंतहाई मशहूर हाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ां निशानदेही की गई है जी कि ऑलरेडी साढ़े कोई नोटिस भी है न, और कुछ चीज़ां जड़ियाँ ना जिन्होंने डिपार्टमेंट की सतह पर कुछ कार्रवाई भी होनी रहनी है, कुछ चीज़ां इन प्रोग्रेस भी होनी, कुछ हो भी जानिया, और कुछ जड़े ने कोई नए इशूज़ भी सामने आ जाने। उस लिहाज नाल कि तुसां बहुत सारे मसाइल ने जी निशानदेही की है उसने हवाले नाल मैं इंतहाई मशहूर हाँ पर्सनली भी। और दूसरा महकमे ने कोई भी डिपार्टमेंट है बीइंग इंसान असा जरा ना कोई भी आइडियल नहीं हो सकता, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स कोई नहीं हो सकता। उसने अंदर अच्छाई और बुराई ने दोनों पहलुओं की देखा जाना, उसने वेट देखा जाना कि अच्छाई ना वेट कितना है और बुराई ना कितना है, कमी कोताही कितनी है और खूबी कितनी है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसने अंदर 75 to 80 ऐसी आइटम्स ना जिस तरह इंसानी जिस्म है, ये मुख्तलिफ अज़ा नाल जदों ये दुरुस्त इसने सारे अज़ा कम करने थे, एक जिंदा इंसान है, चलना फिरना सोचने की सलाहियत है ये करना। बिजली भी सेम जिंदा इंसान की तरह है, इसने अंदर 80 to 85 मुख्तलिफ इक्विपमेंट ने या इंस्ट्रूमेंट आखी सकने हो उसने न कि 1.5 इंच ने काबले तो लैके ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, केबल और इंसुलेटर, पोल, ये सारिया चीज़ां मिल के जो सारिया परफेक्ट होणगियां तो तुसां ने घर बत्ती ऑन होएगी। बज़ाहिर एक आम जड़ा कॉमन मैन है, ले मैन है, उसने वास्ते तो यही है कि जिस वक्त वो बत्ती चलनी है तो वो समझना कि है, अगर बंद होगी तो समझने कि पूरा सिस्टम बैठ गया। उसने अंदर वो जड़े 80 कंपोनेंट ना उन्होंने चुका था, हिक भी बीमार हो जाए ना, हिक भी इन इफेक्टिव हो जाए तो वो सारा निज़ाम बैठ जाना। और अगर 24 आवर ये जड़ा कोई महकमा है जेड़े भी अपने कम वसाइल ने अंदर और ज़्यादा मसाइल ने अंदर रह के पहाड़ों ने दूर दराज इलाके तक बिजली मुहैया कर रहे और सर्विस दे रहे, कोई ऐसी एडवांस कंट्री तो है नहीं है। यानी गरीब मुल्क ने, गरीब रियासत ने ही गरीब शहरियों की ये कम वसाइल ने अंदर फैसिलिटी दे रहे हैं। असा कोई ज़्यादा बड़ा क्लेम ना करने के असा कोई एडवांस कंट्रीज़ नहीं तरह उतना बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन जिस हालात जड़ा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर असा फैलाया वा या दिता वा और फिर उसनी मेंटेनेंस की और उसने ऑपरेशनल सिस्टम की जिस तरह मेनटेन किया वा, ये भी किसी लिहाज नाल इसकी असा ये ना कह सकने कि जी कि ये कोई कमी है किसी भी हवाले नाल, बल्कि काबिल सताइश है। इसने बावजूद ज़ाहिर है कि इंसान जूँ जूँ माशरे ने अंदर तरक्की होनी, आबादी होनी और ज़रूरियात बननी और उसने नाल वो तरजीहात बनने नाल चीज़ों च चेंजेस भी आउन। आज तू 20 साल पीछे चले जाओ या 30 साल तक ये टेलीफोन का कंसैप्ट ही नहीं सी कि ये कोडलैस टेलीफोन भी हो सी जड़ा बगैर तार तू कोई गल भी हो सकती या ये चीज़ां जड़ियां, या आज तू 30 साल पहले जड़ा बंदा फोत हो गया अगर वो इस ज़माने मुड़ी जिंदा हो जाए तो ये समझिए कि जिंदगी है या दुनिया, क्योंकि चीज़ां चेंज हो रही हैं।
ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਤ ਵੀ ਆਨੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਫਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀ TNP ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬੀਇੰਗ इंसान मैं इस सोसाइटी ने इस एक कल्चर है। मैं अगर इंजीनियर हो गया, दूसरा मेरा एक ही कोई रिलेटिव जड़ा वो लाइन स्टाफ ही चाहे कोई रीडिंग स्टाफ ही चाहे जिस तरह तुसा प्रैस वाली साइड तो, लेकिन ब्लड ही की है साढ़ा एक कल्चर ही क्या उसने अंदर हैबिट जड़ियाँ ना जड़ियाँ असें जिबिलत मिलियां वो कामन ये होना कि बाज़ कात चीज़ साढ़े को मौजूद होनी है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह तू बेहतियाती की वजह तू या असा उस तरह की कई चीज़ों की यूज़ ना कर जल्दबाजी कर 100% हर साल नॉर्मल बजट ने अगेंस्ट TNP खरीदी जानी दोवां रीजन मुजफ्फराबाद रीजन भी और मीरपुर रीजन चीफ इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं और हर साल हर डिवीजन की वो TNP खा वो ज़्यादा तादाद है या कम तादाद है वो तमाम डिवीजन की एलोकेट होनी और बिलखसूस जेड़े कंप्लेंट ऑफिसर साढ़े एस्टैबलिश ने ये मैं बड़ी जिम्मेदारी ना लेगा आखना बीइंग ऐसी कि जेड़े 24 आवर वास्ते साढ़े जेड़े कंप्लेंट ऑफिसर्स ने खासकर शहर ने ना उत्थे डेफिनेटली जड़ा है ना वो मेरे STO या जड़ा हैडक्वार्टर ना लाइन सुपरिटेंडेंट है उस चीज़ की इंश्योर भी करना वो TNP उत्थे मौजूद होनी उन्होंने लड़के को। TNP ने अंदर जड़ा साढ़ा रबड़ ग्लव्स जड़ा एक आइटम है ना वो चूँकि ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होना 3 महीने 6 महीने उसकी लाइफ होनी चूँकि फिर वो आ जाना असा रोटेशनली चूँकि वो खरीदने रहने और नाल लाने, लेकिन लैदर प्रोटेक्टर है या बाकी लिंक राड वो चीज़ां जड़ियां ना आइटम लॉन्ग लास्टिंग है वो ज़ाया डैमेज नहीं होती। समटाइम साढ़ा जड़ा लाइनमैन है वो असा बड़ी सख्ती नाल बल्कि इंस्ट्रक्शनां भी इसने पर असा ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी कीतियां कि अगर किसी लाइन स्टाफ ने बंदे की पोल पर बगैर TNP पहने हुआ कम करना होया तो उसकी सस्पेंड करांगे। वो इस वजह तो कि उसकी जान ज़्यादा कीमती है निस्बतन बिजली बहाल करनी, ये साड़ी तरफों बड़ी सख्ती नाल इंस्ट्रक्शन है। लेकिन फिर भी बाज़ कहते होना कि वो बेचारा अगर कोई हादसे ने शिकार होना असा फिर वो चीज़ों की कई बारी अपनी कमी कुताई की भी फिर असा मनसूब करने जी कि अल्लाह की तरफों है, लेकिन कहीं ना कहीं जगह वो इंसानी अपनी गलती उसने ह्यूमन एरर होना जिनी वजह तो हो जाना। उस तो अलावा TNP ना पहली दफ़ा ऐसा हो रहा कि मुजफ्फराबाद थू असा हर सब डिवीजन वास्ते ये तो छोटियां आइटम है ना 3-4 TNP नी चीज़ां असा इसनी सब डिवीजन लेवल वास्ते 100% जदीद किस्म की TNP खरीदी जा चुकी भी, कुछ चीज़ां इन्ना की असा मुहैया कीतियां बल्कि उन्ना की यूज़ करने वास्ते भी इन्ना की जदीद इन्ना की ट्रेंड भी करना सारा आ गया वा मजीद असा इन्ना की वो भी देना। यानी TNP ने जड़ा इशू वो सदर साहब प्रेस क्लब उठाया सी वो इंशाल्लाह नहीं है असा डिपार्टमेंट की सतह पर इंशाल्लाह इसकी असा इंश्योर करने और साढ़ा लाइनमैन जड़ा है सब तो बुनियादी कीमती असासा साढ़ा वही है और उसकी जान उसने बच्चियां नी जिंदगी उसने नाल मुंसलिक है उसका फ्यूचर है वो असा वास्ते भी वो सोसाइटी वास्ते सारे वास्ते सारे असी भैन भाई हैं इसकी असा इंश्योर भी करने कि आइंदा वो जी असा TNP मुहैया कर रहे हो उसकी ये यूज़ करें। दूसरा एक पॉइंट उठाया गया सी कि बस चीज़ां होनियां कि जड़ियां रूमर्स नहीं शक्ल च होनियां और वो जर्नली वो ज़्यादा बंदे की अट्रैक्टिव लगनियां, रूल्स या कानून कायदा उसने और कुछ कह रहा होगा वो फिर असा अपनी आसानियां वास्ते बाज़ कात चीज़ां की शार्टकट किया होगा। जी वो ग्रिड स्टेशन वाली गल की इसने ग्रिड स्टेशन बज़ाहिर तो वो बड़ा तकलीफदेह गल लगनी जी कि वो जब तक वर्क परमिट या जो परमानेंट फॉल्ट आ जाए तो ग्रिड स्टेशन SSO किसी सूरत मजाज नहीं है कि जब तक उस एरिए ना लाइन सुपरिटेंडेंट और STO जाके तय वो क्लीयरेंस ना दे और ये इस वजह तो रूल्स बने हुए ना कि वो बुनियादी तौर पर इंसानी जानानी ही हिफाजत वास्ते है और लाइन मैना नहीं हिफाजत वास्ते है कि वो अपनी लाइन की क्लियर करेगा जड़ा जिम्मेदार बंदा है और वो ग्रिड पर जाएगा चाहे रात है या दिन है नेचर ऑफ जॉब है ना साड़ी असा की ये करना पैना ये नहीं है कि असा कोई दूर हाँ तो नज़दीक हाँ ये साड़ी ड्यूटी शामिल है और वो उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग है इस हद तक कि अगर वो इंश्योर हो जाना ग्रिड स्टेशन ना इंचार्ज कि जी ये इसना लाइन इस क्लीयरेंस करी उड़ी और इसने पर कोई बंदा इसलिए कम नहीं कर रहा तो दिन वो परमिट कैंसिल करके तो ट्राई दे सकते या को तारा नीचे पे वरना टेलीफोन पर परमिट ना रूल नहीं है। ये मेरी उन्होंने भी बड़ी दफ़ा बात हुई, मैं उन्होंने इस मौक़िफ़ की
तस्लीम ही किया। वो असां नाल ग्रिड स्टेशन वाले जिहड़े इंचार्ज ने इस्लामाबाद बैठे हुए, वो साड़ा बड़ा तामन भी साढ़े नाल कर रहे। कोटली च जिहड़ा 40 MVA ने ट्रांसफार्मर आया, जदीद रिले लग गई, नए ब्रेकर इत्थे लगे, और वो आज़ाद कश्मीर सब तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोटली ने सारे ब्रेकर चेंज होए। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है जिहड़ी आइसको वालियां कीती, वो उन्होंने मेहरबानी है। और वो इस वजह तो किया ने कि तुसां लोकां दी जान हो, माल दी हिफाजत और साढ़े महकमे ने कि वो जिहड़े डिजिटल रिले लग गई ना, उन्हां नाल आ कि अगर किसी जगह कंडक्टर टुटसी तो फौरी तौर पर लाइन बंद हो जासी, या लाइन पर अगर इम्बैलेंस है यानी लोड बैलेंस नहीं है, एक ट्रांसफार्मर अगर खाली फ्यूज उड़ासी तो भी वो लाइन ट्रिप कर जासी। क्योंकि इस तो पहले ये शिकायत सन किसी जगह कोई बंदा तारां किसी ने छत को गुजरनियां, कोई टच हो गया, कोई राड लग गया, कुछ हो गया तो बंदा डैमेज हो जाना सी। इस चीज़ की भी असा इंश्योर किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो साड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक जड़ा ना चेंज हो गया, मजीद भी बेहतरी आसी। एक चीज़ और साथी ने गल की सी मंजवाल वाली लाइन, ये एक्सप्रैस फीडर लास्ट ईयर असा खुरट्टा एक्सप्रैस फीडर न बल्कि असा इतना मिनिस्टर साहब को इफ्तिताह भी करवाया सी, मैं खुद ही उसकी इनर्जाइज करवाया। उसने अंदर असा की कोई दिक्कत भी सी, बहुत सारी चीज़ा असा उसकी दूर किया। उस वक्त मंजवाल ना मैं खुद ही आइडिया इन्हों की दिता सी जी कि असा इसकी शहर नाल करके तो लोड बैलेंसिंग भी असा की एक प्रॉब्लम सी। कुछ पोल भी 8 तो या 10 पोल सन जिहड़े कि मुहैया किए सन, उत्थे बाद प्रॉब्लम राइट ऑफ वे नहीं आई है। एजाज साहब लोकली जड़ा है ना उस चीज़ की तुसी देख लो कि अगर वो राइट ऑफ वे ना मसला हल हो जाना, ये तुसानी तजवीज़ दुरुस्त है। कई जगह देखो ना डिपार्टमेंट एक कम करना चाहना, कई जगह किसी की ज़मीन है मलकीती अपनी है, कोई दो पहियां ना आपस में इख्तलाफ है, कोई कोर्ट केसेस हो जाने, उत्थे फिर डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकना। राइट ऑफ वे ना मामले की क्लीयर कराओ, इसकी असा कर देने, असा तो सिस्टम की बेहतर इंप्रूव करना चाहते। किसी जगह जड़ा क्या गया कि जी कि HT ने तो मेरा ये अपना गुमान है, मैं नहीं कह सकना फील्ड नहीं गल, चलो तुम दसने मेरे जेडे फील्ड अफसर ने वो दस सकते 11 KV नहीं जड़ियाँ लाइना ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड सिक्योर ना। मैं इस वजह तू कि उसने अंदर हाई वोल्टेज नहीं लाइन है, उसने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा बढ़ना। अगर ग्राउंड क्लीयरेंस ना हुआ तो फिर वो लाइन ही ना चला, फिर वो हमेशा ट्रिपिंग करनी रहे। वेट वैदर विच खास कर जड़ा ना वो ना चला। लेकिन LT लाइना ना डेफिनेटली उसी को ज़मीनों में तुसा ने चूँकि इधर खेतों च ना कि एक आड़ी पर अगर पोल लगा तो हो सकना ज़मींदार दूसरा मिडल च ना लांदा जी कि मेरा खेत ख़राब होना, वो दूसरे एंड पर तो फिर उसकी ग्राउंड क्लीयरेंस उसकी भी असा मजीद रीसर्वे करवा लेने कि किसी जगह जड़ा इ'यै जेहा है कि जिथे इंसानी जान की खतरा है उत्थे ज़मीन नहीं ज़्यादा वैल्यू नहीं, इंसानी जान ज़्यादा साढ़े वास्ते है। स्कीम भी बनाई है तो वो इसकी असा एक स्कीम ही है जी, बल्कि री रूटिंग भी है कि घरों जो लाने सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक फैसला भी है, असा एक स्कीम ही भेजी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अंदर भी ये है कि जिसले ये चीज़ा लॉन्च हो जासन तो ये मजीद बेहतरी हो जासी। एक चीज़ और है कि ये डिपार्टमेंट जड़ा है ना या सिविल सोसाइटी प्रेस वाले अस कोई बाहर तो नहीं आओ, असा भी सोसाइटी इस रियासत ने हिस्सा जिथे तुसा असा वास्ते अख कन है हो ना या ज़ुबान हो, सेम सिविल सोसाइटी वास्ते भी हो। कि बाद जगह ये है कि मसला 20 साल पहले मैं 2002 च इतना ST हो रही था, मैं गल कर रहा सा कि जड़े असी साफ़ी बरादरान के खसूस कि 20 साल पहले मैं इतना ST रह के भी गया ना, बाईपास पर कुछ भी नहीं सी, अज ये पूरी आबादी है। लेकिन HT नी लाइना गुजर रही सन, लोग मकानीयत ज़ाहिर है भाई घर विच अगर कुछ ने 4 बच्चे ने तो 20 साल बाद वो 4 सरबराह कुंभा बन जाने। लेकिन बिजली नी लाइना जड़ियाँ उस वक्त आम खेत जो गुजर रही या स्पेयर जगह तुम सुनो वो हुण मकाना पर आ गई। अगर ये थोड़ा जा है जी कि असा इंतजामिया के भी लिखने भेजने कि वो एहतियात की जाए कि जड़ा इसना एक डिस्टेंस है 6 फुट जड़ा है ना वो हॉरिजॉन्टली जड़ा है ना इसने तू डिस्टेंस रखा जाए, चाहे वो शेड है या बिल्डिंग है, तो फिर हादसा नहीं होना। बंदे लालच करने ने कि शेड ही 6 फुट कड्डी तो उसने तक लिया उन्हें। अच्छा उन बिजली वाले को तो कोई और असा को मैकेनिज्म तो नहीं है कि असा कोई आसमान अपरू तो लाइन किधर आनी तो ना लाई सकने, वो ज़मीन अपरू ही जाएगी, फिर वो तंग गलियाँ या कुछ है वो फिर हादसे ना सबब बनने। ये एक अगर सिविल सोसाइटी ने अंदर तुसा नी तरफों भी है जितना डिपार्टमेंट नहीं कोई कमी कुताई है या उत्थे तुसा की तरफों डिपार्टमेंट की सपोर्ट भी मिलनी चाहिए है, ताकि जो इंसानी जान तो कीमती कोई चीज़ नहीं है। मुड़ी ये ज़मीन मकान जरा वो 4 फुट 6 फुट शेड है, बंदा नहीं रहा तो वो केड़ी कारी वो इत्थे ही रह जासी। तो इस तो अलावा मजीद जड़े कोई लोकली
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਤਹ ਪਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਖੁਰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੂँकि तुसां कोल ग्रिड है और ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸਤਹ ਪਰ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਰਟਾ ਔਰ ਚਕਸਵਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਹਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਖੁਰਟੇ ਕੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਡਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। लो वोल्टेज वाली प्रॉब्लम नहीं है बल्कि रिसेंटली एक असानी स्कीम मजीद गई हुई है जेडे हर सर्कल चू सिर्फ 2 फीडर लाइना प्रायोरिटीज़ परसन के भेजो कोई वो स्कीम नहीं क्योंकि उसकी मालियत कम सी उसने चिक तुसा ने बरोडगाला फीडर जड़ा है वो असा उसकी प्रायोरिटी पर भेजा और एक मैं कोटली शहर ना वो भी इंशाल्लाह अगले दिनों में उसकी मंजूरी हो जासी और तुसा ने जड़ी कोई छोटी मोटी ये जड़ी कोई कमी या मसला सी बिजली ने हवाले नाल जड़ा ना मेन लाइना ना वो हल हो जासी। बाकी ट्रांसफार्मर मरम्मती ये चूँकि एक नाल है जिस तरह इंसान है बंदा बीमार हो जाना उसकी मेडिसन लेनी पैनी ट्रांसफार्मर न शार्ट सर्किटिंग की वजह तो भी डैमेज हो जाना साड़ा ओवरहेड सिस्टम है जिस वक्त आंधी तूफान ऐसी नेचुरली तारां टच उसन डैमेज हो जाना या पुराना होने की वजह तो वो जड़ा तो अवेलेबल सामान जिस वक्त होना वो तो डिपार्टमेंट देना और वो एक्सिन साहिबान जड़ा है ना इन्होंने हर हफ्ते 10 दिनों बाद डिमांड चलनी रहनी मेरे को आनी मैं चीफ साहब की रिक्वेस्ट करना बाज़ का तीनों को सामान ख़त्म हो जाना लास्टली ऑयल नहीं सी ख़त्म हो गया मैं रिक्वेस्ट की थी ना किसी और जगह तो मंगवा के दिता सम टाइम ये होना कि ट्रांसफार्मर ज़्यादा जल जान मेंटेनेंस ना मटीरियल कम हो जाना उस वक्त कई बारी कंट्रीब्यूशन या असा की एक कंप्लेंट आनी। बाकी जो जिस वक्त सरकार ना सामान मौजूद है वो कतन असा इस चीज़ की डिस्करेज करने कि वो होया वा अगर कोई बंदा कोई पैसे लेना कुछ करना साढ़े को कंप्लेंट आवे असा स्पेयर नहीं करा ये इंशाल्लाह इसकी। दूसरा मीटर रेंट नहीं गल हुई सी मीटर रेंट ना मैं कंप्यूटर सेंटर च भी एक गल की थी इंश्योर करके कई दफ़ा हो चुके एक अलहदा साड़ा डिपार्टमेंट है उन्होंने भी इंश्योर किया कि जेड़े मीटर की कास्ट सारफ जमा करवा दी और मुड़ी इंटर हो गया उसनी मीटर कास्ट महकमा नहीं लै रहे ये ज़रा प्लीज़ तुसा भी इसकी देख ले सो अगर किसी ना ऐसा है भी है तो वो दसा वो रेक्टिफाई हो जाए। बाकी जेडे वो बिल कलैक्शन नहीं जेडे पैसे न वो बैंक वाले डायरैक्टली लेने उसना महकमा बरकियात नाल नहीं था। तीसरा जड़ा कोई टैरिफ नहीं गल है कि चेंजेस ना टैक्सेस ना वो महकमा बरकियात ना या इवन असानी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने भी नहीं है नेपरा एक टैरिफ देनी है उस टैरिफ ने मुताबिक वो इंप्लीमेंट होना और वो बिल अगर दिता जाना जिस तरह के डीजल ना पेट्रोल ना गैस की कीमत बढ़ाई जानी है इस तरह बिजली की भी कीमत बड़िया वनो कम न ज़्यादा या जो भी है वो एक फिर गवर्नमेंट की सतह पर है उसने अंदर कमी बेशी महकमा बरकियात की सतह पर नहीं है। बाकी असा तुसा की ये यकीनदानी कराने जी कि मेरा जड़ा कोई था स्टाफ है असा बैठे हुए हैं वो 24 आवर जड़ा है ना लोगों की सहूलत देने वास्ते और इस जज्बे नाल ही बैठे हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर सहूलत दे सका और किसी की कोई शिकायत है या कुछ है तो उसना अजाला भी हो सके। दूसरा यह कि वाहिद डिपार्टमेंट है तुसें देख लो पुलिस डिपार्टमेंट भी एमरजेंसी डिपार्टमेंट है बाकी पुलिस पुलिस वाले को बंदा जासी जेड़ा कोई क्राइम करसी या जिसने कोई झगड़ा हो सी या कुछ हो सी महकमा बरकियात वाहिद डिपार्टमेंट है जेड़ा हर घर विच इंटरलिंक है जिस बिजली तो बुनियादी ज़रूरत है फिर अगर उसने जदों तुसा इतनी बड़ी आबादी 100% हर घर नाल जदों तुसा इंटरलिंक हो तो फिर शिकायत नहीं रेशो भी जड़ी है ना वो उतनी डेफिनेटली होएगी। उसना ये मतलब नहीं कि वो डिपार्टमेंट कम नहीं कर रहा उसनी अगर रेशो कटसो तो तुसा की अदर डिपार्टमेंट्स जैसे अमूर वनात है या ज़रात है तो उसनी निस्बत बहुत इसनी शिकायत रेशो माइनस ही चूसी तुसा की माइनर लग सी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कि लोग कम कर रहे ना हर घर नाल साड़ा लिंक है और फिर रेवेन्यू कलैक्टेड डिपार्टमेंट है ना रेवेन्यू जो लेसो कुछ करसो तो उत्थे फिर शिकायत भी बढ़न गई जितना सहूलतां दे रहे हैं उत्थे रियासत की तरफों साढ़े पर यह भी जिम्मेदारी है जी कि असा जी सर्विस दे रहे हैं और वो स्टेट जड़ा बिजली दे रही है उसना रेवेन्यू भी कलैक्ट करना तो ये असा की समझ लो तुसा कि दो धारी तलवार ने तहत सर्विस भी देनी और रेवेन्यू कलैक्ट भी करना और लोगों की मुतमिन भी करना तो हाँ अगर कोई ओस्ट बिलिंग ना भी एक तो वो सिस्टम ही सारा चीफ साहब पहले भी दसिया ई बिलिंग ना असी कर रहे हैं और वो मीटर नहीं स्नैप मीटर रीडिंग होएगी कि मीटर अप्रू
ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਡੇਟ ਕੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰॉन्ग ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਸੀ, तो दुरुस्त रीडिंग आ जासी। अलबत्ता ये आके लोग भी अपने कनैक्शन की एज़ पर रूल जड़ा ना रेगुलराइज करान और उसने मुताबिक लवन। एक और गल हुई सी मस्जिद नहीं तो मैं थोड़ा जा हस्या सा, असा मुसलमान हाँ, ये अल्लाह ना मेहरबानी है कि अल्लाह चलो साढ़े पर किया, असा कोई अल्लाह परेशान ना करने के असा कोई मुसलमान है। मस्जिद या जो भी चीज़ है, मदरसा या असा ना घर है, बेसिकली बीइंग सोसाइटी रियासत ने अंदर वो कानून सारे पर एक जैसा है। मस्जिद ही जाने यहाँ तक कोई सान था ना अल्लाह पर करने, तो असा नहीं, ये अल्लाह ना करम है कि अल्लाह असा की मुसलमान घराने पैदा किया, असा मुसलमान। तो वो ये आ कि मैं समझना कि बाकी जगह अगर कोई कमी कोताही टिकी रहे तो और बात है। मस्जिद ने अंदर बिजली ना मिस यूज़ या असा ये चीज़ा अक्सर होना, तो साढ़े मौलवी हजरात भी समझने कि खैर असा बड़ा आसान करने थे नहीं, वो मैं समझना वो ज़्यादा है, काबिल मुआखजा भी है और उसकी जवाबदेही शायद ज़्यादा मुश्किल हो। इस चीज़ों से असा की ज़्यादा विजिलेट रहना चाहिए। मैं इस तवक्को नाल ही अपने अल्फाज जरा ना वो इंतजाम करना कि असा इस दुआ नाल कि अल्लाह ताला असा की मज़ीद तौफीक दे तुसानी खिदमत करने ना और अपने डिपार्टमेंट की और इसकी कारगुजारी बेहतर करना। फमा अलैना इल्ला सर ये मसला इत्थों 200 यूनिट भेजी है, कंप्यूटर आ गया 400 यूनिट बनाई भेजी है। दूसरा ये मसला कि जेडे ये मीटर डैमेज होने, मीटर चल रहा चलने चलने आने जी नए मीटर लाने, नए मीटर जो लाने तो उसले आने जी मीटर जो पुराने डैमेज की यूनिट लोगों की लाने। ये दसो एक मीटर में अगर 150 यूनिट या 120 नहीं आ रही है तो उस भी 300 या 400 क्यों भेजने जब तक मीटर लाना। अगर तो ठीक हुआ तो फिर दूसरा ये मामला कि असन ऊपर पहाड़ी एरिया बहुत दूर लोग सफर में प्रॉब्लम होना। उस ना ये उसी जी तुम गल करनी हो ये है कि जिस वक्त मीटर रीडर या डिपार्टमेंट डैमेज डिक्लेयर करने ना उसकी एवरेज बढ़ा देना। अच्छा एवरेज बढ़ा देने तुम मीटर रिप्लेस करवाने होने जिला जिचर वो दर्ज नहीं होना उस वक्त तक वो एवरेज कोई आनी है। और अगर उस तो बाद मीटर की कंजम्पशन 2 महीने या 3 महीने वो आ जानी तो वो रिकनसाइल हो जानी है। जी तुम गल है जी मैं अंडरस्टैंड की नहीं सर ये 200 यूनिट ने भेजी है दफ्तर तो कंप्यूटर एरर होई सकना हो मैं इसकी करेक्शन करवाई छोटा है मसला नहीं है। हां 200 यूनिट आया 400 भेजा। बाद दफा रीडिंग ही दूसरा ये सर और प्रॉब्लम है मतलब साड़ा पहाड़ी एरिया एक बंदे की ड्यूटी होनी है, वो बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा जगह जगह बिल भेजने उसकी जिम्मेदारी है, वो बिल बाज़ औकात लोगों की पहुँचने नहीं अगर बाद जड़े क्योंकि डेट तो बहुत लेट पहुँचे। दूसरा ये है कि वो लोग दफ्तर के अंदर जाई तुसाना जी डेट होनी है बिल जमा कराने ने 19 तो 23 तक हालत तक क्योंकि 100-150 बंदा आना बिल। क्या ये जड़े जिन्हें लोगों की जिम्मेदारी है जड़े लोग उस एरिया की तनख्वाह ले रहे हैं या बिल जमा कर रहे हैं या बिल दे रहे हैं, क्या उन्हें जिम्मेदारी नहीं जाके जितना बिल आ रहा मीटर आ रहा है वो चेक करके नहीं दे सकते। क्योंकि एक बंदा अगर 300 रुपया उसी किराया पैना 300 आने ना 300 जाने ना 700 उसने बिल है उसने दिन भी जाया होना फिर मुड़ी ठीक होना फिर कंप्यूटर का मसला ना। अच्छा इस हल भी है जो बयान किया ना असी साहब वो कर रहे हैं। अच्छा इस हल कर रहे हैं महीना 1 लाख सी हो ये इस तरह ना फोटो। दूसरा एक मैं सारा निकल जब चेक कराना यह मसला ये मीटर है, इस मीटर पर एक 12,35,33 यूनिट है, मौके पर है 45,51,85 ये यूनिट है जी ये यूनिट है जी पिछले महीने 3470 है जिस दिन रीडिंग की है, मौके पर 1785 यूनिट है आया। ये बंदा 1700 यूनिट का एडवांस बिल और उसकी बकाया 300 यूनिट का बिल आ रहा 200 300 इस तरह एक वाक्य नहीं, इस तरह हज़ारों वाक्य इसी रेंज मैं चेक करा सकता जिस तरह उस दिन भी आए कर जाए 1600 यूनिट मीटर पर चली है 3500 उस तरह अकाउंट लिखाया सी मैं 3500 यूनिट है जरा मीटर पर मौजूद है जरा बिल जमा करा रहे 1600-1500 मीटर। दूसरा ये है सर नहीं दूसरा ये है ना सर दूसरा ये है कि मसलन एक एरिया जी बिजली ने बिल लोग जमा करा रहे उत्थे जी चोरी हो रही है वो तमाम उन्होंने लोगों को पेज हाँ ये है कि अगर मैं चोरी कर रहा तो मेरी एवरेज ज़्यादा बढ़ रही है, इस तरह मसला क्यों नहीं हल हो। इस तरह मसला भी उस तरह भी यही हल है कि जो फोटो रीडिंग हो रही ना उसमें सिर्फ अपनी यूनिट सासन इस तरह तुम बोझ नहीं पड़ना और इस चोरी का फिर मोहम्मद से वो सारे ये दिता गया बिल ये गलती नाल ही कंप्यूटर चलो ऐसा दूसरी अगर इसने गारंटी आओ तो मैं पेश कर ही सकता क्योंकि ये बिल
इस बंदे वोट दिता पीटीआई की इंक्वायरी करें और इस बंदे वोट दिता मैं सीधी आना झूठ नहीं बोला और अल्फन में आना और इस बंदे ने खिलाफ इंक्वायरी की है नूर लीग का क्यों होया इस तरह नूर लीग का बंदा जो उत्थे लगा ना कर जाई जो उत्थे डिप्टी मौजूद नहीं है इतना कुरेटा डिप्टी है उन्हें धमकी दी है कि तुम्हारी बिल है जो 300 400 इस तरह असा नहीं बर्दाश्त करने पीटीआई नहीं बात नहीं सर ये नूर लीग पीटीआई नहीं बात है सरकारी इंक्वायरी कराओ ना मैं देखो इसे इंक्वायरी करानी है इसने इंक्वायरी कराओ मैं पहले ही पकड़ इसी धमकी दी है घर जाके मीटर लगा हुआ इंक्वायरी करानी ये मीटर रीडर जड़ा बादशाह है ना उस रीडिंग पहले कुछ और पाई है बाद उस 200 यूनिट लिखी है फिर 400 पेजी है ठीक है ए मैं नज़र आ रहा ना हाँ ठीक है तो बिल फिर मुड़ी ओके ना 50 यूनिटा ना भी गया है एसडीओ ने इसने पर कोई साइन नहीं मीटर रीडर कोई अथॉरिटी नहीं है लाइन सुपरडेंट और एसडीओ में इस हमारे ने दसिया कि मीटर रीडर की बुलासो मैं पहले क्या इसने ले लिया अगर इसमें फोटो कापियां तुझे को लैन तो ठीक है तो ये दे नहीं ये तो नहीं देनी ये इनकी की देनी है ये असा इस मीटर रीडर को पूछा दूसरा ये इतना पावरफुल नहीं है कि ज़्यादातर लोग बैरूनी मुल्क हैं इस वास्ते उठो औरतां आनी इस वास्ते इस पर खुसूसी होने चाहिए नहीं सुन रहे वास्ते सर ठीक है इस वास्ते इसने पर जड़ा मीटर रीडर ना परफॉर्म है ना इसने पर तो मैं इनकी पहले दसिया इसकी इन ऊपर पूरी नजर रखनी है और साइड विजिट करो काउंटर चेकिंग ये एक नहीं सर ये जने 50 वाक्य में कर जाए नहीं जड़ी मीटर ने दस सकना लेकिन मैं एक ही ले आया ये नोट करके छुई दे सकते बिल छुई दे सकते लाठ F9 है अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब सर कापी दो सर लिखी कि नहीं कापी दो इसकी नोट कर जाइए चलो यार अस्पताल में उसमें कुछ स्कीम चल रही उसी दिन मौजूद है सर बड़ी मेहरबानी है कि सारी बिल्कुल इत्थे असां एक बिल्कुल मेरा घर आखिरी है तो अच्छा कदे असां जनरेटर लगी पानी भर दिया है पुणे 201 के तकरीबन महीने दो दफा सारा ट्रांसफार्मर भी खराब हो बिजली कोई नहीं सर चार दिन सोना लाया तो सामने मस्जिद में कदे ज्यादा मौका दिया जाए तो बड़ी सारे पता लगा कि सारी स्कीम चल रही उसी देख लेना उसी लाजम ठीक है चलो मेहरबानी तुसां ये तुसां तक किया ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਸਟ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਸਾਂ ਦੋ ਦਫਾ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੱਕਿਆ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾਲ हाँ नहीं समझ से केड़ी जगह है चलो मेहरबानी मेहरबानी टेंशन बड़ी जरिया ना सारे वास्ते मेहरबानी उसी के असल गर्मियां च ऐसे नाल ही ने सारे क्या करें दाल सारा बिजली का बड़ा मसला है और ऐसा इतना जलील ख्वार उस बिजली से हो गए पड़ोसी भी होता है 8 दिन सर 8 दिन रोज का जली जलाना बाजार तो वैसे भी असन प्राइटी पर है सर 8 दिन बाद का ट्रांसफार्मर सारा सड़ी जाना 8 दिन सारी बिजली नहीं होनी ठीक है सारी मोटरों पर लोग पानी चलो तो इंशाल्लाह जल्दी उसी मसला चलो मेहरबानी सर बहुत शुक्रिया वाजिद चौधरी अदवाजा जर्नलिस्ट है बदकिस्मती LOC ने बिल्कुल करीब रहने असो मैं चाहना था जनाब आज जाहिर दरबार लाया साड़ी सर कल ही असानी बिजली इस वक्त तक खराब है वो मसला यह सर कि एक तो दरगूटी क्रॉस पर कोई बंदा लाइन मैन को नहीं होना असा नहीं जिसला एक फ्यूज़ खराब हो जाए सर 2 दिन बिजली बहाल नहीं होती उसका बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो लाइन मैन दरबार लाइन पर है ना पॉइंट जो आ गया साढ़े को SDO साहब बेहतर दसन वो मेरा ख्याल है इतना मंजवाल या इस इलाके कितने रहने वो इतों जाने ना 4 बजे ड्यूटी करते वापस आई जाने अगर 4 बजे तो बाद सारी बिजली खराब होनी सर वो दूसरे दिन फिर आना कोई 416 जे सीरियल है कि अस आखा तो कोई साढ़े पर कमाल मेहरबानी कदा करी होंदा कोई बंदा आई जाए तो ठीक हो जानी इस्तदा है सर कि अगर दरगूटी क्रॉस पर एक लाइन मैन साड़ा ये अपॉइंट किया जाए परमानेंट अगर साड़ी वो बिजली राती भी कुदा कोई प्रॉब्लम होनी तो ठीक हो जाए दूसरी सर जितना इस वक्त तुम तशरीफ फरमाए हो ये रेस्ट हाउस है साढ़े को ये भी असा की खुशकिस्मती नाल ही रेस्ट हाउस मिलया सी और इसने वोल्टेज इतना कम सर गर्मियों जितना पखे नहीं चलते इस तरह अगर एक ट्रांसफार्मर अल्लाह किता है असा की इनायत फरमान जनाब इतना चूँकि हर किस्म ने जोड़े साढ़े को मेहमान बाहरों अच्छे वो इतना ही स्टे करने
ये काफ़ी दफ़ा जली भी चुका ये बेहतर एसटीओ साहब इस बारे इस तरह ब्रीफ कर कर लेना सकते इस तरह कर लेना कि उस डिपार्टमेंट जिस तरह है ना जी ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲੇ ये सियाद लिया उन्होंने दसना कि सेपरेट ट्रांसफार्मर तुम डिपॉजिट करो असल एक तरीकाकार है जो ठीक है बिल्कुल एक खालिस्तान रेस्ट हाउस ये सर ये ਸ਼ਾਪ ਸਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ PWD ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ठीक ਬਣਾ है ਕੇ। ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸਨੇ ਪੈਸੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਸਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ बस एस्टीमेट बना के बनाए थे बड़ा सर एक कोई हाल का। मौजूद ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਵੀ ਜੜਾ ਹੈ ਨਾ लाइन मैन वाला इशू जैसा रिसेंटली असा क्या किया कि जितने रीडिंग पर लाइन मैन असिस्टेंट लाइन मैन मामूर सन्ना उन्होंने सारे के शिफ्ट किया हूँ लाइन पर ठीक है कोई बंदा रीडिंग स्टाफ वाले पास नहीं एक का सही सर उधर परमिट ग्रास परमानेंट दे दियो ट्रेनिंग चलनी कोई यंग मुंडे सारे ट्रेनिंग आस्ता आस्ता वो ठीक है। अपने स्टाफ ज्वाइन एक चलो उठा एक ऑफिस छोटा जा सा सारे बंदे तोवर कर सकते सर उठा क्रॉस तुझे मैं याद करा सारे उस एरिया से यार बस ठीक है सर ऑलरेडी है ना बस हाल कर ठीक है प्रॉब्लम है सर खीरटा बननी थी तले का मेरा जिस महल्ले च रह रहे हैं 80 घर एक ट्रांसफार्मर और जदों ट्रांसफार्मर सड़ना असा की आयल ने पैसे देने पैने कोयल ने पेपर ने उस तो ठीक है जो कोई एल्टियां बनियां के बनियां मनीला तो उन्होंने अलग जोड़ा बंदा ग्राजू पैसे इकट्ठे करना वो भी 10% अपने लाना ना प्लीज़ मेहरबानी करो कि असा की ट्रांसफार्मर दिता जाए उसे अलग ताकि वो लोड डिवाइड हो जाए बंडी कड़ी जगह मोड़ा कितने घर हैं तकरीबन 80 घर ही ट्रांसफार्मर पहली गल है कि ट्रांसफार्मर ठीक मैं अपना प्रोसिक्यूशन नहीं कर पैसे नहीं देते एक दूसरा सो वो भी अपनी स्कीम भी देख लेना अच्छी क्या गुंजाइश है सर कड़ा महकमा ठीक रहा सी मतलब मैं सोचा आखना ना क्रॉस होना हाँ ठीक है क्रॉस होना पहले अगर नहीं भी होया तो हम क्रॉस सर मेरी रिक्वेस्ट सुनो ना 8 ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਲਾਣ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀ ਫਾਲਟ ਕਿਆ ਆ नहीं वो ठीक है ना मैं सारे अफसर इतने कोई डाटा दफ्तर है ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਕਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਥੇ ਰਿਹਾ ਮਕਾਮੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ चलो ये शिकायत ठीक है तो ट्रांसफार्मर स्कीम च रखना ਪਲੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਲ ਕਾਰ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ LT HD ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸकी ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ और असा की एक ट्रांसफार्मर मुहैया किया 80 कर रहे हैं 80 का एक ट्रांसफार्मर दा ठीक है ठीक सब नक्शा बनाओ लेना ठीक है बल्कि जेडे इथे खरोटा इंचार्ज जिन्हें दफ्तर मोहतमीम साहब ले गया उन्होंने 2-3 दफा आए अच्छा उन्हें एक असा नाल कोऑपरेट किया पिछली दफा कि उन्हें आया खाली तुसा पेपर ने पैसे जिदे जमा करो बाकी असा सरकारी तेल वाला बंदा उथे मौजूद बैठे आ उन्हें जी तेल वाला बंदा ही कोई नहीं असा जिला मनीला या दोबारा से बुलाया ने फिर तेल मुहैया ट्रांसफार्मर ही पाया ठीक है बस तकने हैं इसकी इसका नक्शा बनाई किन्ने में आप ठीक है नहीं इंशाल्लाह शुक्रिया सारे मस्जिद कोयटा साफ़ी हजरात बाकी सिविल सोसाइटी से जो लोग तशरीफ़ लाए आपने इस कचहरी में शिरकत की जो भी शिकायत हुई जो तजावीज़ आपने दी हम समझते हैं आपने हमारे ऊपर मेहरबानी की रहनुमाई की हमारी मतलब इंसान को आके जाने और सुनने में वो कहता है फ़र्क है मौके पे जाने में और बात किसी के ज़रिए सुनने में फ़र्क होता है तो जो भी मसाइल आपने बयान किए कोई इतना बड़ा मसला कोई भी मुझे नहीं नज़र आया इसमें थोड़ी बहुत अपनी मेहनत कोशिश से नेक नीति से हम अगर ये करें और अपने मामला को मतलब तरजीह उसकी सही तौर पर फिक्स करें और सही प्लानिंग करें तो ये सारे मामला लोकल सतह पर ही हल हो सकते हैं कोई इतना बड़ा इशू आपका नहीं है तो मैं अपने ऑफिसरान की तरफ से अपनी तरफ से आपको यकीन देने कराता हूँ कि अपने मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे जो वसाइल हमारे पास हैं उनको अच्छी मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल करके लोगों की शिकायत का बर वक्त अजाले के लिए पूरी कोशिश करेंगे और मैं खुद अपने दफ्तर से भी वक्तन अपने स्टाफ के साथ रब्ते में रहता हूँ इस रब्ते को मज़ीद बढ़ाएंगे ताकि जो चीज़ें आपने हमारे नोटिस में लाई है उसकी प्रोग्रेस ले सकें कि जो मसला पेश हुआ उस पर क्या प्रोग्रेस है एक चीज़ जहाँ पर डिस्कस हुई है कि लोगों के घरों के ऊपर से तारें जा रही हैं दुकानें बाज़ार भी कंजस्टेड सा है मैं कई दफ़ा मैं 2-3 साल यहाँ अक्सर रह के गया हूँ कोटली तो तकरीबन अक्सर लोग जलते भी हैं तो मैं कम अज़ कम एरिया का पूरी तरह वाक़ुफ़ हूँ इस माली साल के बजट में हमने सेफ्टी के नाम से एक स्कीम शुरू की है क्योंकि आए दिन हादसा होते हैं पिछले साल एक नौजवान बच्चा किसी कॉलेज में वो लग गया था कोटली में एक हादसा हुआ मीरपुर में हुआ मुख्तलिफ मुजफ्फराबाद में आए दिन होते हैं तो सेफ्टी के नाम से एक स्कीम शुरू की है जिसमें जो आपने केबल की निशानदेही की पहले तो मुतालबा था या ऐलान था इस दफ़ा हमने उसको स्कीम में रखा है
تو انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آئے گی. اسکیم مطلب منظوری کے مرحلے میں ہے, اس کے لیے پیسہ مختص ہو گیا ہے, تو پھر جب منظور ہو جائے گی پھر اس کے لیے مطلب بڈنگ کرنی پڑتی ہے, منگوانی پڑتی ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ یہ ہوگا. تو اس طرح جو تاریں اسد صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی. کوئی پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ 15 سے 20 اسٹے آرڈر ہمارے محکمے نے جاری کرائے ہیں. یہاں پہ یہ لوگ مطلب لائنوں کے نیچے آ کے تعمیر شروع کر دیتے ہیں, پھر محکمہ بے بس ہو جاتا ہے. نو اتنے وسائل ہیں کہ ساری لائنیں جو ہیں وہ گھروں کے اوپر سے ہٹائیں. زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ بطور سوسائٹی بھی اور ہم خود بھی مطلب لائنوں کے قریب کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے تعمیر کریں. تو اس کے بعد اگر قانون کا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی سول سوسائٹی کا, پریس کا, مطلب میڈیا کا ہمارا ساتھ ہونا چاہیے. لوگ ظاہر ہے جس کے خلاف جائیں گے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا, تو اس میں بھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. تو جو اسٹے آرڈر وغیرہ کروائیں اس سے چلے. ویسے بھی لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ہم لائنوں کے نیچے تعمیر کریں گے تو رکاوٹ آئے گی, ہم مکان نہیں بنا سکیں گے. تو اس کی آپ کی طرف سے بھی حوصلہ افزائی چاہیے. تو ہماری جو اسکیم ہے اس کو بھی ہم کوشش کریں گے جلد لانچ کریں. جہاں جہاں خطرناک ایریے ہے, ہم نے کوئی مہینہ پہلے ہم افسران کو ہدایات کی کہ آپ ایسی جگہ نامینیٹ کریں, ان کی نشاندہی کریں جہاں پہ فوری طور پر خطرات ہیں. تو جہاں پہ اوور ہیڈ کرنا ہے, جہاں انڈر گراؤنڈ کرنا ہے, وہ سارا انہوں نے بنا کے بھیج دیا ہے. کوشش کریں گے, ایک دم ایک ہی سال میں سارا نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ نہ کچھ کام اس کا آغاز اس دفعہ انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ سب حضرات کا شکریہ. بل کے حوالے سے ایوریج ریڈنگ کے حوالے سے شکایت ہوئی, میں نے جس طرح بیان کی ہے اس پہ کروڑوں روپے کے خرچ سے ایک اسکیم تیار ہوئی ہے. یہ موبائل ڈیوائسز, ٹریننگ, کمپیوٹر, سارے مطلب سب ڈویژن لیول تک یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو مہینے بعد 1.5 مہینے بعد یہ چیز شروع ہو جائے گی. تو کوئی ایوریج ریڈنگ یا کوئی گھر بیٹھ کے کوئی میٹر ریڈر بل نہیں دے سکے گا, یا کسی پارٹی بازی پہ یا کسی برادری پہ کوئی کسی کے ساتھ انشاءاللہ جاتی نہیں ہو. جو جن ذاتیوں کو غلطیوں کی نشاندہی ہوئی ہے ان کو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اور میں انشاءاللہ اس کا نوٹس بھی لوں گا کہ جو چیزیں لوگوں نے آج بتائی ہیں اس پہ کیا کیا پروگریس ہوئی. جو لائنیں ہماری نیچے کوشش کریں گے جو ٹائٹ کرنے سے ہو سکتی ہیں. جو وایا بہت لمبا ہے تو سیفٹی میں میرا خیال ہے وہ چیزیں بھی رکھی ہیں. تو پھر وہاں سے اگر جو پروویژن ہوئے جس حد تک ہمارے پول آئے, کوشش کریں گے جو بہت زیادہ لمبا سپین ہے اس میں بھی اگر کوئی پول آپ ڈال سکیں. پریس کلب کے صدر صاحب ہیں, باقی صاحبان ہیں, جن لوگوں نے اور سول سوسائٹی کے حضرات نے نشاندہی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر مہربانی کی, ہمیں وہ مطلب رہنمائی کی. تو ہم ان کی اس رہنمائی سے اپنے آپ کو اور بہتر کریں گے. اسد صاحب نے بجا فرمایا کہ ہر گھر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, اور وسائل ہمارے وہی 50 مطلب کم از کم 20 سال پرانے تو ہیں, اسٹاف بھی وہی ہے, کوئی کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا. تو سروس بہرحال ہم دے رہے ہیں, اللہ کی مہربانی ہے. کوشش یہی ہے کہ وہ سیفٹی فرسٹ ہے. ہم اپنے اسٹاف کے لیے ہر سال TNP لے رہے ہیں, اس دفعہ بھی بلکہ لے کے رکھی ہوئی ہے, مظفر آباد سے اٹھانی ہے. اور کوئی مزید جس کی بلڈنگ ہو رہی ہے کل اس میں بھی ڈالی ہے کہ سیفٹی کے لیے جو سامان ہے وہ ہماری پرائرٹی ہے. جب یہ لوگ ہوں گے, ہمارا اسٹاف ہوگا تو کام چلے گا. نیا جب بھرتی کریں گے, نئے 10 لوگ ہو جائیں تو پرانے 2 جو ہیں وہ ان کے کی جگہ کافی ہے. ان کو ٹرینڈ ہونے میں کام کریں گے. پھر ہر سر کی جان قیمتی ہے, یہ اسٹاف ہمارا دست و بازو ہے. تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اسٹاف کے حق میں بات کی, ان کی بہترین. ان کے کنوینس کے بارے میں سر کیا سوچا آپ نے؟ اس کے لیے گاڑی تو ہم نے سب ڈیل میں جس کو کمپلین کرنی ہوتی ہے وہ تو موٹر سائیکل کا ایک پھر بیگ پہ لے کے جائے گا, رات کو بجلی ٹھیک کرائے گا, پھر واپس آ کے چھوڑ کے جائے گا. ان کو آپ دینا فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو کریں اپنے اسٹاف کو. کچھ ان کی گاڑی ساری وہ بیسیکلی فیلڈ کے کمپلینٹ کے لیے ہوتی ہے. جو STO کی گاڑی اسی لیے نہیں ہے, وہ سب ڈویژن کے کمپلینٹ کے لیے ہوتی ہے. اب یعنی ایک گاڑی ہے یا ایک موٹر سائیکل ہے, کمپلینٹس اگر 10-15 اکٹھی آ جاتی ہیں, وہ یہی ہے کہ وہ ایک ٹائم میں تو ایک جگہ آپ کا بہت شکریہ, مہربانی. دوسری جگہوں پہ یہی ہوتا ہے کہ پھر چونکہ لوگ قریب ہیں تو سر ایریا بہت زیادہ ہے نا, یہ آپ موٹر بائک لے کے دے دیں ان کو, اس کو بہتر کریں گے. یہ اگر ہم ایسٹ چیک کریں نا, میں وہ چیک کروں گا کہ اب یہ سیری گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے جائے گی, اور یہاں پر اگر مثال کے طور پر ایک نہیں 2 گاڑیاں کوٹلی ہیڈ کوارٹر کی گاڑی بھی ادھر دے دی ہے, نئی گاڑی دی ہے ادھر. ایک گاڑی STO ہیڈ کوارٹر کے پاس ہے, دوسری گاڑی بروڈگالہ بھی دی ہے. سب سے گاڑیاں اچھی جو ہیں وہ ہماری کوئٹہ ڈویژن میں. اس کے علاوہ میں ایسٹ چیک کروں گا, ہو سکتا ہے کہ آپ ایک موٹر سائیکل بتا رہے ہیں, میں ایسٹ چیک کروں گا کہ کتنے موٹر سائیکل ہیں, وہ اور نکلیں گے. ٹھیک ہے, یہ نقشے کے لیے میں خود پتا ہے نا, ریکارڈ میں وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہونے چاہیے. فیلڈ میں کام کریں, اگر موٹر سائیکل ہے تو پھر فیلڈ میں کام کریں, اپنے پرسنل استعمال کے لیے نہ رکھے بندہ. پھر گاڑی کوٹلی ہیڈ کوارٹر سے ہم نے یہاں ایک اور دی ہے بروڈگالہ,
ہے نا یہ گاڑی جو ٹھیک ہے اور ہیڈ کوارٹر میں 2 گاڑیاں ہیں کورج کرنے پہ ہم آپ کے کوئٹہ شہر کی طرح ہی ہے جڑا ساڑھے بڑا تے نہیں ہے 2 گاڑیاں کوٹلی ہیڈ کوارٹر ایک گاڑی ہے جی آج جس طرح آپ بخوبی واقف ہیں کہ کھرٹا میں محکمہ برقیات کے زیر اہتمام ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں محکمہ برقیات کے مقامی افسران کے علاوہ چیف انجینئر برقیات نواز عباسی صاحب بالخصوص آج کھرٹا پہنچے اور انہوں نے یہاں پر جو صارفین ہیں جنہیں محکمہ برقیات سے شکایات تھیں ان سے براہ راست ان کی شکایات سنی اور موقع پر انہیں حل کرنے کے اقدامات بھی صادر فرمائے۔ یہاں پر کھرٹا کی جو صحافی برادری تھی وہ بھی آج خاصی تعداد میں یہاں پر موجود تھی۔ اوورآل آج کی کھلی کچہری میں ہم نے دیکھا کہ وادی بلا کے لوگ اس طرح سے کھلی کچہری میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر برقیات کی جو شکایات ہیں وہ انتہائی کم ہیں، اور جو لوکل سٹاف ہے، جو سب ڈویژن آفس ہے ہمارا کھرٹا میں، یہاں کا جو سٹاف ہے یہ خاصا الحمدللہ کوآپریٹو سٹاف ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں انہیں یہ جو مقامی ہمارے افسران ہیں یا جو لائن مینز ہیں یا جو بھی یہاں پہ جو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں وہ ان ایشوز کو فوری طور پہ حل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کھلی کچہری میں اس طرح سے لوگ شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی شکایات یہاں پر چیف انجینئر کے سامنے نہیں رکھی۔ جو چند لوگ جو شکایات لے کے آئے یہ اوورآل وہی شکایات ہیں جس طرح ٹرانسفارمر کے ایشو پہ بات ہوئی۔ جب ٹرانسفارمر یہاں پر کسی علاقے میں جل جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جو اہل محلہ ہوتے ہیں لوگ وہ اپنی مدد آپ کے تحت پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے ٹھیک کیا جاتا ہے، ریپیئر کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے چیف انجینئر نے ہمیں بتایا کہ بہت جلد یہ جو مسئلہ ہے عوام کا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو ہماری ورکشاپ یہاں پہ تیار ہو رہی ہے اس کی تیاری کے بعد یہ جو ایشو ہے یہ محکمہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دور پہ ان ٹرانسفارمرز کو بھی ریپیئر کیا کرے گا۔ ایک جو دوسری بات یہاں پر سامنے آئی، صدر پریس کلب کھرٹا اظہر ملک صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی، باقی لوگوں نے بھی اس پہ بات کی کہ جو تاریں لٹکتی ہیں جگہ جگہ پہ اسکول و کالجز کے اوپر سے لوگوں کے گھروں کے اوپر سے گزرتی ہیں ان کی سیفٹی کے لیے، تو اس پہ بھی چیف انجینئر نے اور جو ایس سی صاحب تھے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں بریف کیا کہ بہت جلد اس پہ بھی ایک سکیم جو ہے وہ منظوری کے مراحل میں ہے، جس کے بعد یہ سیفٹی ایشوز کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور یہ جو تاروں کا مسئلہ ہے جو جگہ جگہ لٹک رہی ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے ان کا بھی سدباب کیا جائے گا، ان کا کوئی مثبت حل نکالا جائے گا۔ تو اوورآل نثار صاحب آج کی اس کھلی کچہری میں جو ہم نے دیکھا کہ خاصے مطمئن پائے گئے، جو لوگ یہاں پر شکایات لے کے آئے ان کے بھی کوئی بڑے پرابلمز نہیں تھے، لیکن محکمہ برقیات کی یہ جو کاوش تھی، یہ جو کوشش تھی، یہ بے شک ایک بہت اچھی روایت ہے۔ لوگوں کو اپروچ جو ہے ان کو ایزی مہیا کی گئی ہے، لوگ خود آتے ہیں آ کے اپنی شکایات بیان کرتے ہیں، لیکن میں کھرٹا سب ڈویژن کے جو افسران ہیں یا جو محکمے کے جو لوگ ہیں، جو عملہ ہے، جو سٹاف ہے، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہی مجھے پتہ چلا، جو ایس سی صاحب نے بتایا کہ تقریباً 50,000 کے لگ بھگ کنیکشن ہے کھرٹا میں، سب ڈویژن اتنے کنیکشن ہونے کے باوجود اس طرح کی شکایات نہیں تھیں۔ یہ جو خاصا جو ہے وہ اطمینان بخش عمل ہے، اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی خاصی تسلی بخش رہی ہے۔ جی